So we all are aiming for 2025 pre, right? Good. So we will be starting with modern India, and I'm not starting it as the way I used to start in your pre-com mains batches, where I always started with coming of Europeans. Today I will be starting with revolt of 1857, right? First we will do the core freedom struggle wala part, 1857 to 1947. And then we will do the ancillary part, that coming of European, social reform, peasant uprisings, that we'll do towards the end in 2-3 lectures. Usually you have seen more questions are coming from freedom struggle. So we will be focusing on that part. Now what I've done is, you cannot change history. Like what I taught you guys in your pre-com mains batches, I cannot change the facts. If doctrine of lapse was introduced by Dalhousie, it will remain introduced by Dalhousie. If Satara was taken over, it will remain Satara. So it will be more like revision. But what I've done is, in the last about 2 years, if there was any specific news or editorial in the newspaper, I have picked up some of those points and added to my notes. So these are not something new that things I'm going to teach you, but there will be some additions and modifications. So I will be sharing these PPTs or PDFs with you so that you can read them at your convenience. And then from tomorrow onwards, there will be a everyday test. Like today, I cannot give you a test, but what we read today, tomorrow at the end of the class, there will be a test, right? So, all right. So I'm going to start this with revolt of 1857. It will be quick revision. You have to tell me if you want me to elaborate on anything or explain anything. So if I talk about the causes of the revolt of 1857 or the background to it, so we all remember there are political factors like doctrine of lapse. Now this doctrine of lapse was introduced by Lord Dalhousie, and it was back in 1848. The first state to be annexed was Satara. Then there is Jhansi, Nagpur, Awadh. Jaitpur and Sambhalpur was also annexed, Bhagat and Udaipur. Now what you have to remember is the sequence. So if Satara is in 1848, Jaitpur followed by Sambhalpur in 49, Bhagat 50, then we have Udaipur 52, Jhansi 53, Nagpur 54 and Awadh 1856. Now quickly find the wrong fact in it. There is one wrong fact, and what is that? That's not a fact, wrong information. So if you guys are taking so much of time to not understand that Awadh was not annexed on doctrine of lapse, it was on poor administration or maladministration, then there is no revision of modern India at all. If this basic fact took us so much of the time to identify, तो पेपर में कैसे करोगे? आ गया याद सबको? Online, is it clear? And there is someone who has written it. Very good. Sukhman and Nitika. Great. Sukhman, very good. ठीक है, तो इसको डिलीट कर दो. अब एक काम करो, इन योर नोटबुक राइट द सीक्वेंस. क्विकली एक सीक्वेंस लिख लो अपने पास. First one is doctrine of lapse लिख के Satara 1848 followed by Jaitpur and Sambhalpur. Number 1 is Satara, number 2 Jaitpur and Sambhalpur, number 3 is Bhagat, number 4 Udaipur, number 5 Jhansi and number 6 will be Nagpur 1854. But ये बस एक करेक्ट सीक्वेंस लिख लो अपने पास. Satara, Jaitpur and Sambhalpur, भगत, उदयपुर, झांसी, नागपुर. ठीक है, और ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए था. इट वाज जस्ट टू चेक द क्लास एट द वेरी स्टार्ट कि कितना रिवीजन किया हुआ हम लोगों ने. डन. Now if you have written this sequence, Satara, Jaitpur, Sambhalpur, Bhagat, Udaipur, Jhansi, Nagpur, then next will be Rani Lakshmi Bai lost her kingdom when her adopted son was denied succession rights. So can you tell me the name of the adopted son?
Damodar Rao. And can you tell me the name of her husband, deceased husband? It was Gangadhar Rao. Gangadhar Rao was the husband, and what was the name of son? Damodar Pant. Very good. Good, Pooja and Ashpreet. Excellent. Okay. Then Nana Sahib, adopted son of Peshwa Bajirao II, lost his pension. I've given the figures, not relevant though. And this led to the Indian rulers having lost their trust in the British governance, because of which there was a widespread unrest. Right? This is one. Now, second will be annexation of Awadh. Now, something that I intentionally wrote up there. So, Lord Dalhousie ने इसको annex किया था on the grounds of misgovernance, but yes, it was under the doctrine of lapse. Now, that is a new trick here, because it is like that your son is there, but he is not fit for the job. So, I am going to take it over, right? Neither you nor your son. So, there was an indirect element of doctrine of lapse, but it was not per se taken over under the doctrine of lapse. Fine. Then Nawab Wajid Ali Shah, he was removed. There were 25,000 nobles and 40,000 soldiers. Now these 65,000 people have been rendered jobless. So this will lead to a lot of unrest in Awadh. Begum Hazrat Mahal, his wife, became a key leader in the revolt, and this created a pool of discontented aristocracy. Who are these? They are the nobles and unemployed soldiers. And Awadh annexation violated the treaty which was signed in 1801 between the company and Awadh. So remember this treaty, it was that company will protect Awadh. Now the protector becomes the exploiter, or they are going to deny them their existence. Then we talk about the expansionist policies. So one is annexation of Punjab after Second Anglo-Sikh War. जल्दी से गवर्नर बोलना इस टाइम पे कौन था? Dalhousie. It was during the time of Lord Dalhousie. Right? Then annexation of Lower Burma after the Second Anglo-Burmese War. Again, Lord Dalhousie. Then Nana Sahib pension stopped after Bajirao II's death, 1851. Lord Dalhousie. Then subsidiary land system introduced by Lord Wellesley. This is the main time, led to loss of sovereignty of many Indian states. Example, Hyderabad being the first to sign it in 1798, losing control over foreign affairs and military. Done. अब ये हो गए एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज के एग्जाम्पल, सारे किए हुए थे. इसमें से कोई ऐसी चीज जो याद नहीं है और यू वांट एनी एडिशनल एक्सप्लेनेशन फॉर एनीथिंग? दिस इज सॉर्टेड. देन एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस जो आए थे, एक तो टाइटल अबॉलिश कर दिए, पेंशन ऑफ फॉर्मर रूलर्स को अबॉलिश किया, जिसमें मेन एग्जांपल्स आते हैं कर्नाटक एंड तंजौर के. तंजौर के रूलर्स के टाइटल्स और पेंशंस खत्म किए गए. ब्रिटिश लीगल सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ जिसने ट्रेडिशनल अथॉरिटी को चैलेंज कर दिया. राइट. देन बंगाल रेगुलेशन 3 ऑफ 1818 अलाउड डिटेंशन विदाउट ट्रायल, इरोडिंग सिविल लिबर्टीज. अब ये वाला फैक्ट नया है. इट वॉज इन न्यूज जब ये सारा आईपीसी सीआरपीसी चल रहा था, उस टाइम पे इसके ऊपर थोड़ा रेफरेंस आया था न्यूज़पेपर में, तो ये एक फैक्ट नया है. यू कैन राइट इट डाउन. बंगाल रेगुलेशन 3 ऑफ 1818 अलाउड डिटेंशन विदाउट ट्रायल. फिर ये तो याद ही हम सबको, मैकॉलेस मिनट ऑन एजुकेशन 1835 में वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट किया गया. तो इट वॉज काइंड ऑफ अ कल्चरल एडमिनिस्ट्रेटिव शॉक फॉर इंडियन मासेस. अब ये आई होप तुम लोगों ने पढ़ा होगा इसके बारे में, बट याद नहीं किया होगा. इनाम कमीशन 1852, ये किस लिए था? इन्वेस्टिगेटेड रेंट फ्री लैंड टेन्योर्स लीडिंग टू वाइड स्प्रेड लैंड कॉन्फिस्केशन इन बॉम्बे प्रेसिडेंसी. सो एक लैंड कमीशन था, इनाम कमीशन 1852 का, जिससे बॉम्बे प्रेसिडेंसी में बहुत सारी जो रेंट फ्री लैंड टेन्योर्स थी ओल्डर टाइम्स की, वो कॉन्फिस्केट कर ली गई थी, जिससे एक और अनरेस्ट की सिचुएशन बनी थी. सो आई सपोज इसमें हमारे पास एक ये फैक्ट, देन सेकंड एंड थर्ड, ये 3 नए फैक्ट्स हैं विच वर इन न्यूज एंड वी शुड हैव नॉलेज अबाउट देम. डन. इनाम कमीशन के ऊपर ऑलरेडी भी क्वेश्चंस आए हुए हैं इन द प्रीवियस ईयर. इनमें से किसी और के ऊपर किसी को कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन? इनाम कमीशन में अगले लेक्चर्स में थोड़ी डिटेल में कराऊंगा. आज 1857 का रिवोल्ट है,
बट जिस दिन हम वो लैंड पॉलिसीज करेंगे उसमें इनाम कमीशन को मैं थोड़ा इलेबोरेट कर दूंगा। इकोनॉमिक फैक्टर्स में अगर हम बात करें तो लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज जो थी, वी ऑल नो दे वर हाईली एक्सप्लॉयटेटिव। महलवाड़ी सिस्टम जो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस में हॉल्ट मैकेंजी ने इंट्रोड्यूस किया था 1822 में। रॉयतवाड़ी सिस्टम मद्रास और बॉम्बे में टॉमस मुनरो ने। टॉमस मुनरो इज नोन फॉर मद्रास। बॉम्बे के लिए किसका नाम याद करते हैं हम? और एल्फिंस्टन, राइट, एल्फिंस्टन। इनमें हाई रेट था टैक्सेस का, सम एरियाज में अप टू 50% ऑफ द प्रोड्यूस डिमांडेड एज रेवेन्यू। अवध में अगर हम बात करें 21,000 तालुकदार लॉस्ट देयर लैंड ड्यू टू ब्रिटिश पॉलिसीज। फिर परमानेंट सेटलमेंट 1793 बंगाल में, वी ऑल रिमेंबर द नेम लॉर्ड कॉर्नवालिस। इससे एक न्यू क्लास ऑफ जमींदार आई थी, डिसरप्टिंग ट्रेडिशनल लैंड ओनरशिप। और फिर से एक रेफरेंस टू इनाम कमीशन, जो नया उसको मैं ट्राई करूंगा दो दो तीन तीन बार रिपीट करता जाऊं। इन्वेस्टिगेटेड रेंट फ्री लैंड टेन्योर्स लीडिंग टू वाइड स्प्रेड लैंड कॉन्फिस्केशंस। डन। और क्योंकि ये फार्म अनरेस्ट के टाइम पे इनके रेफरेंसेस आए थे इनाम कमीशन के, इसलिए मैंने इसको बार बार अपने नोट्स में इंटीग्रेट कर दिया। डन। देन डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। अब ब्रिटिश पॉलिसीज में ना जहां पर थोड़े फैक्चुअल कम और एनालिटिकल क्वेश्चंस आते हैं प्री में, वहां पे इन पॉइंट्स को अब अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। ब्रिटिश पॉलिसीज फेवर्ड इंपोर्टेड गुड्स, इंपोजिंग हाई टैरिफ्स ऑन इंडियन प्रोडक्ट्स। हमारे देश में हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर हाई टैरिफ और अपने गुड्स के ऊपर लेसर टैरिफ्स, तो उनके गुड्स कॉम्पिटेटिव एज ले गए, चीपर हो गए। देन डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स एंड टेक्सटाइल्स कर दिया, जैसे कि ढाका की जो मसलिन इंडस्ट्री है वो पूरी तरह से कोलैप्स कर गई। एक्सपोर्ट्स फेल फ्रॉम दिस मच इन 1787 टू ओनली दिस मच इन 1817। तो इन अबाउट गुड 30-40 ईयर्स इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया पूरा सिस्टम। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 ने क्या किया, इसने ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली खत्म की थी। आई होप वी रिमेंबर, जैसी उसकी पार्शियल थी, पूरी तो 1833 में हुई थी, लेकिन जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली खत्म हुई, नाउ फ्रॉम इंग्लैंड एनीबडी कैन डायरेक्टली कम एंड बाय और सेल गुड्स इन इंडिया। तो फ्लडिंग इंडियन मार्केट्स विद ब्रिटिश गुड्स। अब अचानक ब्रिटिश गुड्स का जो इंडिया में सप्लाई चेन था वो बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव कर दिया गया, बिकॉज ऑफ विच इंडिया में ब्रिटिश गुड्स ज्यादा हो गए एंड दे बिकेम चीपर, क्योंकि वॉल्यूम बहुत था मार्केट का, तो इसलिए दे गॉट एन एज। और इंडियन इंडस्ट्रीज जो थी, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वो डिस्ट्रॉय होनी शुरू हो गई। एंड दिस इज एग्जैक्टली द टाइम व्हेन इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पीक करना शुरू कर रहा है। 1760s में स्टार्ट हो रहा है, बाय 1813 वो पीक कर रहा है, और मैनचेस्टर में टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे ज्यादा फ्लरिश कर रही है। देन इंपोजिशन ऑफ इनलैंड कस्टम्स लाइन। अब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हम लोगों ने पहले मिस किया होता है। इनलैंड कस्टम लाइन ये 1823 से लेके 79 तक थी फॉर सॉल्ट टैक्स कलेक्शन हैम्पर्ड इंटरनल ट्रेड। तो इन्होंने एक इनलैंड कस्टम लाइन बना दी थी कि इस लाइन के बियॉन्ड तुम अपने प्रोडक्ट्स को लेके नहीं जा सकते डायरेक्टली विदाउट ब्रिटिश इंटरवेंशन। तो अब इसमें वो अपने टैक्सेस ऐड करते हैं या अपने प्रॉफिट मार्जिन को इंक्रीज करते हैं, जिससे कि इंडिया में और ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन बढ़ता है। राइट, सो रिमेंबर दिस न्यू फैक्ट, इनलैंड कस्टम्स लाइन। साजिद, मैंने जब बोला था ना रिवीजन के लिए, तो मैंने बोला था एंशिएंट, मिडीवियल एंड मॉडर्न सब रिवाइज करके बैठना। अब आती है बात इकोनॉमिक ड्रेन की, इसमें भी हमें कुछ स्पेसिफिक नए फैक्ट्स मिल जाएंगे। वेल्थ ट्रांसफर फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन concept articulated by Dadabhai Naoroji, we all remember this fact, then estimated at 100 million pound transferred between this much of the time, 1757 to 1815 के बीच में 100 मिलियन पाउंड ये कर दिए। होम चार्जेस, इंडिया फोर्स टू पे फॉर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिलिट्री एक्सपेंसेस। होम चार्जेस में ये दो आते हैं। देन इंडियन रेवेन्यूज यूज्ड टू फाइनेंस ब्रिटिश मिलिट्री कैंपेन्स इन अफगानिस्तान एंड बर्मा, राइट, थ्रू दिस। एंड दादाभाई नारोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो 1901 में आई है, क्वांटिफाइड द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। क्लियर। अब इसमें ना रिवोल्ट के बियॉन्ड भी बहुत सारे फैक्ट्स कवर होंगे, रिवाइज होंगे, जैसे लास्ट में जब हम जाएंगे तो 1909 1919 के एक्ट भी कर दूंगा, बट दैट विल बी प्रूव टू बी अ लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस ऑफ द रिवोल्ट, राइट। देन बात आती है एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस की। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस,
तो एक तो हो गया कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, जिससे कि कैश क्रॉप्स ज्यादा आ गई फूड क्रॉप्स के कारण इन प्लेस ऑफ देम, विच लेड टू फ्रीक्वेंट फेमाइंस, जैसे कि ग्रेट बंगाल फेमाइन एंड ओडिशा फेमाइन, राइट। जबकि ये अब रिवोल्ट के बाद का है मेजर फेमाइन, बट दिस इज जस्ट एन एग्जांपल टू रिमेंबर कि ओडिशा का फेमाइन रिवोल्ट के बाद आया था, पहले नहीं आया था, जबकि बंगाल का फेमाइन इज अ रीजन फॉर रिवोल्ट। अब एग्जांपल में इंडिगो रिवोल्ट, ये 1859 टू 62 हो रहा है। अब तुम्हें याद क्या रखना है कि रिवोल्ट ऑफ 1857 के इमीडिएटली बाद इंडिया में इंडिगो रिवोल्ट हुआ था, नील विद्रोह इन बंगाल अगेंस्ट फोर्स्ड इंडिगो कल्टीवेशन। नाउ हियर आई वुड लाइक टू आस्क अ क्वेश्चन, वेरोनिका, नील विद्रोह लीडर्स। गुड, हाँ जी सर। ऑनलाइन किसी को याद है नील विद्रोह के लीडर्स? वेरी गुड सुखमन, दिगंबर बिस्वास एंड विष्णु चरण बिस्वास। लिख लो नाम फटाफट से, दिगंबर बिस्वास एंड विष्णु चरण बिस्वास। एक्सीलेंट सुखमन, आज लग रहा है पूरी रिवीजन करके आई हो। नादिया डिस्ट्रिक्ट था बंगाल का, नादिया जहां पे ये स्टार्ट हुआ था, नादिया डिस्ट्रिक्ट में नील विद्रोह दिगंबर बिस्वास एंड विष्णु बिस्वास ने किया था। और अब ये बताओ, कितना ही सिंपल क्वेश्चन होगा कि हु वाज द गवर्नर जनरल, या मैच द फॉलोइंग करने के लिए किस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, जो रिवोल्ट के इमीडिएटली बाद फर्स्ट वाइसरॉय बने थे। तो लॉर्ड कैनिंग वाज द गवर्नर जनरल। अच्छा, अब नील के बाद, नील विद्रोह के बाद इन्होंने एक कमीशन भी बिठाया था, किसी को याद है वो कमीशन? अच्छा, छोड़ देते हैं उसका नाम। मैं 3 क्वेश्चन पूछता हूं, फिर कमीशन की बात कर लेंगे, ठीक है? तो मेरे को ये बताओ कि सबसे पहले नील दर्पण का राइटर दीन बंधु मित्र, वेरी गुड, लिख लो। दीन बंधु मित्र रोट नील दर्पण ऑन द थीम ऑफ इंडिगो रिवोल्ट। और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने किया था? माइकल मधुसूदन दत्त। माइकल मधुसूदन दत्त। नील विद्रोह के बाद इंडिगो कमीशन वाज अपॉइंटेड इन 1860 and it was a 5-member commission. अंडर चेयरपर्सन कौन थे? इंक्लूडिंग द चेयरपर्सन देयर वर 5 members. तो इसमें जो चेयरपर्सन थे वो थे W.S. सेटन कार, SETON, सेटन KARR कार, अंडर चेयरमैनशिप ऑफ सेटन SETON कार KARR कार। और इसमें 5 में से इंक्लूडिंग चेयरमैन 5 मेंबर हैं, एक इंडियन मेंबर था। तो इंडियन मेंबर का नाम याद रखते हैं, चंद्रमोहन चटर्जी। इंडियन मेंबर वाज चंद्रमोहन चटर्जी, and this man Chandramohan Chatterjee, he was representing the zamindars.
इसकी रिकमेंडेशंस मेन 3 थी रिकमेंडेशंस ऑफ इंडिगो कमीशन। एक था शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स, यू कैन नॉट जस्ट कीप देम एज अ बॉन्डेड लेबर, तो शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट मैक्सिमम अप टू 12 मंथ्स, शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट मैक्सिमम अप टू 12 मंथ्स। दूसरा बायलेटरल नेगोशिएशंस, bilateral negotiations between the Ryots, peasants and planters, between Ryots and planters for land selection. For land selection. And last, shifting the cost of transporting indigo, shifting the cost of transporting indigo from peasants to the factories. बाकी तो वी ऑल नो कि रायतवाड़ी महलवाड़ी से पेजेंट इंडेटेडनेस इंक्रीज हो गया था एंड लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट था इरिगेशन एंड एग्रीकल्चरल इंप्रूवमेंट में, जिससे एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस बढ़ता ही जा रहा था। नाउ वी टॉक अबाउट सोशल एंड रिलीजियस फैक्टर्स। सबसे पहले तो वेस्टर्न एजुकेशन एंड सोशल रिफॉर्म्स में इंग्लिश एजुकेशन के ऊपर जो मेन एम्फेसाइज किया गया वो वुड्स डिस्पैच के साथ शुरू हुआ 1854 में, जिससे कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को अबेंडन किया गया था और मास एजुकेशन की बात हो गई, और ये भी लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर आई। वुड्स डिस्पैच, वुड्स डिस्पैच आने से पहले का जो स्टेप था वो था मैकॉलेज मिनट ऑफ 1835, जिसमें उसने बोला था कि इंग्लिश शुड बी प्रमोटेड ओवर वर्नाकुलर लैंग्वेजेस, राइट। एंड आई होप वी ऑल रिमेंबर ही वाज द फर्स्ट लॉ मेंबर इन द काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल। Who was the Governor General when he became the first law member? Lord William Bentinck. Great. All right. बाकी सती अबॉलिश हुआ था 1829 में, ये किसके एफर्ट से? राजा राम मोहन रॉय, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। विडो रिमैरिज 1856 में लीगलाइज की गई थी, ये लॉर्ड डलहौजी ने की थी, एफर्ट्स ऑफ ईश्वर चंद्र विद्यासागर था। देन हिंदू कॉलेज जो अब प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी है, इट वाज एस्टैब्लिश 1817 प्रमोटिंग वेस्टर्न एजुकेशन। अब ये जो अगले दो फैक्ट्स हैं मैंने कॉन्टिन्यूटी में लिख दिए ताकि एजुकेशन से याद रखे जा सकें। एक था इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 ब्रॉट हायर एजुकेशन अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल, ये कर्जन के टाइम का है, जिसके बाद पार्टीशन ऑफ बंगाल था। देन एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891, इससे रेज द एज फॉर कंसेंट ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स फॉर गर्ल्स फ्रॉम 10 to 12 ईयर्स। ये दो फैक्ट्स एडिशनल मैंने यहां पे ऐड किए हैं, इनको याद रख लेना कि ये रिवोल्ट के बाद के फैक्ट्स हैं बट रिलेटेबल हैं। देन फियर ऑफ फोर्स कन्वर्जन हैं, एक्टिविटीज ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज रेज सस्पिशन, कन्वर्जन ऑफ ऑर्फन्स ड्यूरिंग फेमिन्स फ्यूल्ड एंजाइटी। एक ये नाम याद रखना, विलियम कैरी, इसकी मिशनरी एक्टिविटीज बंगाल में सबसे पॉपुलर थी, राइट। ही वॉज अ लीडिंग मिशनरी एक्टिविस्ट। फिर चार्टर एक्ट ऑफ 1813 ने मिशनरीज को इंडिया में फ्रीडम दी थी दैट दे कैन प्रमोट क्रिश्चियनिटी एंड कन्वर्ट पीपल, और विलियम बेंटिक जो है वो इन मिशनरी एक्टिविटीज को और वेस्टर्न एजुकेशन को काफी ज्यादा सपोर्ट करते थे। तो रिमेंबर, डिस्पाइट बीइंग अ वेरी गुड पर्सनालिटी हु इज इन्वॉल्वड इन सोशल रिफॉर्म्स, विलियम बेंटिक ऑल्सो एनकरेज्ड कन्वर्जन्स, राइट। हाँ जी, ऑनलाइन। एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट और एनीथिंग दैट यू गेन टुडे इन फर्स्ट हाफ एन आवर? Will this pace of revision will be okay for everyone here and online? Pace is okay, and you need these notes or you already have the notes so you don't want these notes? यार एक स्टूडेंट बोल रहा है स्क्रीन ब्लर्ड है, बाकी लोग भी बता दो। किसी और को भी स्क्रीन ब्लर दिख रही है?
ओके, नोट्स आई विल प्रोवाइड। स्क्रीन किसी और को ब्लर नहीं दिख रही है तो प्लीज वो, यार किसने बोला वीडियो में पॉलिटी विल स्टार्ट? पॉलिटी लिखा शेड्यूल में? दैट्स रियली सैड। मैंने तो पहले ही बोला था आई विल स्टार्ट विद मॉडर्न इंडिया। चलो देन अगला आता है इंटरफेरेंस इन रिलीजियस मैटर्स। अब यहां पे ना ये एक्ट रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट 1850 अलाउड कन्वर्ट्स टू इनहेरेंट एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। इसके अगेंस्ट बंगाल में 60,000 सिग्नेचर्स करके गवर्नर जनरल को एक पिटीशन किया गया था, बट ही रिजेक्टेड इट। सो डलहौजी था इस टाइम पे गवर्नर एंड ही डिड नॉट एग्री टू इट। विडो रिमैरिज एक्ट को लीगलाइज किया। कास्ट डिसेबिलिटीज रिमूवल एक्ट पास किया गया 1850 में, प्रोटेक्टेड कन्वर्ट्स प्रॉपर्टी राइट्स। और फीमेल इन्फेंटिसाइड, अब ये रिवोल्ट के बाद का फैक्ट है, राइट। तो फीमेल इन्फेंटिसाइड 1870 में बैन किया गया था और ह्यूमन सैक्रिफाइसेस के अंदर भी जो इन्होंने एक्शन लिए वो भी सीन एज इंटरफेरेंस इन ट्रेडिशन माने गए, बट ये रिवोल्ट के बाद के फैक्ट्स हैं। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, इंडियंस एक्सक्लूडेड फ्रॉम हायर रैंक्स इन सिविल सर्विसेज एंड मिलिट्री, रेशियल अब्यूज एंड सोशल सेग्रीगेशन कॉमन। लेकिन इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी है वो तो रिवोल्ट के बहुत बाद का एग्जाम्पल है। इससे पहले हमें पता है दैट डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, बट जो ऑस्टेंसिबल इसका एविडेंस दिखता है वो इल्बर्ट बिल है विच कम्स बिफोर द बर्थ ऑफ कांग्रेस, राइट। Highlighted racial tensions in judicial service, exclusion of Indians from elite clubs and public spaces, and then disparities in pay and working condition between European and Indian employees. तो इसके कारण वो डिस्क्रिमिनेशन जो है वो स्पॉइस को ज्यादा डिस्ट्रेस में लेके जाती है। नाउ वी हैव मिलिट्री ग्रीवेंसेस, जिसमें जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट 1856 है, विच रिक्वायर द स्पॉइस टू सर्व ओवरसीज, जो कि कास्ट रूल्स ऑफ हिंदूज के अगेंस्ट है और सबसे ज्यादा ये सिपाहीज ऑफ बंगाल आर्मी को ही इंपैक्ट करता है बिकॉज ऑफ देयर रिलीजियस कंसिडरेशंस। हिंदू सोल्जर्स फियर्ड लॉस ऑफ कास्ट बाय क्रॉसिंग द ब्लैक वाटर्स ओशन, राइट, काला पानी के पार नहीं जाएंगे हम। एंड एक्ट अप्लाइड रेट्रोस्पेक्टिवली, बैकडेट से अप्लाई किया गया कि दोज हु आर ऑलरेडी सर्विंग दे हैव टू नाउ एग्री टू दिस। सो इसलिए एनलिस्टेड सोल्जर्स में काफी ज्यादा इसको लेके टेंशन होती है। वायलेटेड द टर्म्स ऑफ एनलिस्टमेंट फॉर मेनी सिपाहीज, राइट, यू कैन नॉट डू दिस रेट्रोस्पेक्टिवली। फिर डिस्पैरिटी इन पे एंड प्रमोशंस जो था, इंडियन सिपाही पेड लेस, इंडियन सिपाही को 7 रुपीज पर मंथ मिलते हैं वर्सेस 20 रुपीज फॉर यूरोपियन सोल्जर्स। सो 1:3 की रेशो में सैलरी है। नो इंडियन कुड राइज अबव द रैंक ऑफ सूबेदार, नॉन कमीशन पोस्ट में रहता है। मंगल पांडे, सिपाही ऑफ 34th नेटिव इन्वेंट्री, वाज ऑन अ सैलरी ऑफ 7 रुपीज अ मंथ। Then promotion based on seniority for Indian soldiers, while British officers could be promoted based on merit. तो उनको out of the turn promotions मिलती हैं। Racial discrimination in living condition and medical care for troops. तो on every aspect wherever you see the lifestyle, so British को बहुत ज्यादा फेवर किया जा रहा है। अब हमने ना पढ़ा हुआ था डबल भत्ता वाला कॉन्सेप्ट, इसको थोड़ा मैंने यहां पे इलेबोरेट कर दिया है। लॉर्ड बेंटिक रिड्यूस भत्ता फॉर सिपाही सर्विंग इन सिंध एंड पंजाब। तो एक तो हमारे पास इसका ये फैक्ट नहीं था कि किसने इसको रिड्यूस किया था डबल भत्ता को, ये बेंटिक ने किया था, सिंध और पंजाब में स्पेसिफिकली किया था। 10 रुपए से कम करके 8 रुपए किया गया था सिंध में, जिससे कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड मोरल जो है सोल्जर्स का वो इंपैक्ट होता है। और सिमिलर कट इन पेंशन एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट्स भी किया गया। भत्ता फॉर ऑफिसर्स लेड टू डिसकंटेंट अमंग ब्रिटिश ऑफिसर्स एज वेल। सिर्फ इंडियंस में नहीं था, ब्रिटिश के लिए भी इसको रिड्यूस किया गया था। ये बेंटिक की एक इकोनॉमिक रिफॉर्म की एफर्ट थी, सिक्योरिटी ड्राइव थी कि कंपनी के प्रॉफिट्स को थोड़ा इंक्रीज किया जा सके। कंपनी वाज नॉट इन अ वेरी पिंक स्टेट ऑफ इकोनॉमी और फाइनेंसिस, इसलिए बेंटिक ने अपनी तरफ से इकोनॉमिक या फाइनेंशियल रिफॉर्म्स करते हुए डिफेंस के एक्सपेंसेस कम करने की कोशिश की थी। It was not just applicable to Indians, it was applicable to the whites as well, right? तो उनमें भी डिसकंटेंट था इस चीज को लेके। Any doubt up to this point? Anyone? Thanks Sajid for saying that screen is crystal clear. इसके बाद नेक्स्ट आता है चेंजेस इन रिक्रूटमेंट पॉलिसीज, शिफ्ट फ्रॉम रिक्रूटिंग हाई कास्ट हिंदूज टू अदर ग्रुप्स। धीरे धीरे ये भी चेंज आना शुरू हो गया। Increased recruitment from Punjab and Nepal, but this is after 1857's revolt.
affected traditional military service communities in Awadh and Bihar. Then introduction of martial races theory after 1857, change recruitment patterns. और फिर एक पील कमीशन तो हमें पता ही आया था, recommended changes in recruitment and organization of Indian Army. पील कमीशन आगे डिटेल में हम कर भी लेंगे. अब इसके बाद आता है इमीडिएट ट्रिगर एंड आउटब्रेक. तो सबसे पहले आता है ग्रीस कार्ट्रिजेस का इंसिडेंट. इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एनफील्ड राइफल, राइट. पैटर्न 1853 एनफील्ड राइफल इंट्रोड्यूस इन इंडियन रेजिमेंट्स इन 1856. ये नाम है, राइट. पैटर्न 1853 एनफील्ड राइफल 1856 में इंडिया में आई. रिक्वायर्ड बाइटिंग ऑफ एंड ऑफ ग्रीस कार्ट्रिजेस. रूमर्स थे काउ एंड पिग के फैट इन द ग्रीस. Each cartridge contained 68 grains of powder and 530 grains bullet, and mini ball design increased accuracy and range significantly. So ये तो बस मैंने वैसे ही थोड़ा सा शो ऑफ कर दिया कि these are the facts available, but ऊपर के facts बहुत हैं. मंगल पांडे का एक्शन, डेट इंपॉर्टेंट रहेगी, 29 मार्च 1857. मंगल पांडे अटैक ब्रिटिश ऑफिसर्स एट बैरकपुर, executed on 8th April, becoming a martyr figure. Mangal Pandey then shouted, "Come out, you blackguards! The Europeans are here. From biting these cartridges, we shall become infidels." फिर एक जमादार ईश्वरी प्रसाद का नाम है, रिफ्यूज टू अरेस्ट पांडे. इसको भी बाद में कोर्ट मार्शल करके एग्जीक्यूट किया गया. इसका नाम आया था इस बार आजादी का अमृत महोत्सव में, तो मैंने वो ऐड कर दिया है. जमादार ईश्वरी प्रसाद, ही इज द वन हु रिफ्यूज टू अरेस्ट मंगल पांडे. बाकी 34th नेटिव इन्फेंट्री डिसबैंडेड ऑन 6th May 1857 एज पनिशमेंट. थर्टी फोर्थ नेटिव इन्फेंट्री जो आर्मी के जो यूनिट था मंगल पांडे वाला, उसको बंद कर दिया, खत्म कर दिया, उसको डिसबैंड कर दिया गया, राइट. अब आती है बात स्प्रेड ऑफ रूमर्स की. एक तो वो चपाती वाला रूमर था, याद है सब लोगों को, that circulated among villages, interpreted as a secret communication, कि एक आधी कच्ची पक्की सी चपाती सर्कुलेट की जा रही है so that people can get a clear message कि if the British rule will continue and the economic exploitation goes on like this, तो हम ऐसी रोटी खाने के भी काबिल नहीं रहेंगे, कच्ची पक्की रोटी भी नहीं मिलेगी, we will be starving and dying. Then lotus flower distributed among spoils believed to be a symbol of impeding upheaval. Lotus is symbol of wealth, Lakshmi. तो वो बताया जा रहा था कि इंडिया से इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है. देन जर्नल हियर सेज अटेम्प्ट टू डेमोन्स्ट्रेट द कार्टरेज सेफ्टी फेल टू कन्विंस सिपॉइज, राइट. देन रूमर्स ऑफ बोन डस्ट मिक्स्ड इन फ्लावर एंड पिग फैट इन घी स्प्रेड रैपिडली, कि हमें इंटेंशनली चूरा आटे का उसमें हड्डियों का चूरा मिलाया जा रहा है हिंदुओं के लिए, और फिग फैट जो पिग का फैट है वो घी में, टू डिफाइल द रिलीजियस बिलीफ्स ऑफ द मुस्लिम्स. Then fear of forced conversion to Christianity through contaminated food and cartridges, कि तुम्हारा धर्म खराब करके then they will ask you to now convert to Christianity. So ये एक set of rumors था. अब आती है बात spread of revolt की. एक छोटा सा काम मैंने तुम्हें ओरिजिनल क्लास में भी बोला था, अगर तो किया हो तुम लोगों ने वंडरफुल, नहीं किया हुआ तो प्लीज एक बार इसको मैप पे लोकेट कर लेना. एट मैक्स एक डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा, 4 लोकेशंस देके बोला होगा मैच कर दो कौन सी लोकेशन है 1857 की, राइट. सो मेरठ अपराइजिंग जो है, यहां से स्टोरी स्टार्ट होती है. मेरठ अपराइजिंग 10th मई की है. यहां पर 3rd बंगाल लाइट कैवेलरी थी जिसने न्यू कार्ट्रिजेस के लिए मना कर दिया. स्पॉइल्स फ्रीड 85 इम्प्रिजन कॉमरेड्स एंड किल्ड ब्रिटिश ऑफिसर्स. यहां पर जो कर्नल फिनिश थे 11th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के, वॉज द फर्स्ट कैजुअलिटी, गोरे को मारा गया. मेरठ कंटोनमेंट से इंडियन सिपॉइल्स कंपेयर टू दिस मच, इंडियंस वर outnumbering the Europeans. Civilian population joined the revolt, attacking European residents. So मेरठ से स्टार्ट हुआ. Then 10 मई को वहां थे, 11 को they came to Delhi, और दिल्ली में बहादुर शाह जफर को एम्परर ऑफ हिंदुस्तान बनाया गया. Symbolically ended Mughal dynasty subservience to British. अब उनको दोबारा से पावर में ला रहे हैं. लेफ्टिनेंट विलोगबे जो थे, उन्होंने दिल्ली मैगजीन, ये क्या था जहां पे सारे एम्यूनेशन पड़ा हुआ था, इसको खुद ही उड़ा दिया था बॉम्ब से, टू प्रिवेंट इट फ्रॉम फॉलिंग इनटू द रेबल्स हैंड. अगर उनको ये सारा बारूद मिल जाता सो दे वुड हैव बीन वेरी स्ट्रांग इन दिल्ली, फिर इनको कंट्रोल करना वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट. सो दिस वाज अ वेरी स्ट्रैटेजिक डिसीजन ऑफ अ ब्रिटिश ऑफिसर कि उसने अपनी मैगजीन को खुद ही ब्लो कर दिया, राइट. साइमन फ्रेजर द ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट किल्ड बाय द रेबल्स. अब इसका नाम याद रखना, साइमन फ्रेजर
ही वॉज द ब्रिटिश एजेंट एट दिल्ली। टेलीग्राफ ऑफिस को डिस्ट्रॉय किया गया था सो दैट न्यूज स्प्रेड नाउ, बट अनफॉर्चुनेटली ट्रांसमिटेड टू पंजाब, तो इसलिए पंजाब से हेल्प आ गई थी ब्रिटिश आर्मी की, राइट। अब आता है रैपिड एक्सपेंशन। रिवोल्ट स्प्रेड करता है मई 30 तक लखनऊ, जून कानपुर, जून में झांसी, जून में इलाहाबाद, जून एंड तक रोहिलखंड, बुंदेलखंड और सेंट्रल इंडिया में। कानपुर का सीज 6 जून को हुआ था, 27 जून तक। बैरकपुर, अंबाला, मेरठ म्यूटनीज अकर्ड ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली। रिवोल्ट स्प्रेड टू सिविलियन पॉपुलेशन इन मैनी एरियाज, और सबसे ज्यादा पावरफुल अवध और रोहिलखंड में था, जहां पर सिविलियन पॉपुलेशन ने एक्टिव पार्टिसिपेट किया था। दीज टू सेंटर्स वर मोस्ट पॉपुलर फॉर सिविलियन अपराइजिंग्स, बाकी जगह पे सिपॉय म्यूटनीज थी। अब अगर हम मेजर सेंटर्स और उनके लीडर्स को क्विकली रिवाइज करते हैं, नॉर्थ इंडिया में दिल्ली, बहादुर शाह जफर ये नॉमिनल था, भक्त खान जो था वो मेन लीडर था सिपॉय म्यूटनी का। दिल्ली में जून टू सितंबर रेबल्स ने सीज किया हुआ था। सीज ट्रेन फ्रॉम पंजाब अराइव्ड ऑन सितंबर 4, टर्निंग टाइड इन ब्रिटिश फेवर, राइट। तो सितंबर में फिर ब्रिटिश आर्मी पंजाब से यहां पे एंटर करती है, और दिल्ली में जो एज था वो खत्म हो गया। रेड फोर्ट बिकेम रेबल हेडक्वार्टर। बहादुर शाह जफर ट्राइड फॉर ट्रीजन एंड एक्साइल टू रंगून इन 1858, वहीं पे फिर इनकी डेथ हो गई थी। कानपुर में नाना साहेब धोंदू पंथ जिनका ओरिजिनल नेम है। सीज ऑफ कानपुर लेड टू ब्रिटिश सरेंडर। नाना साहेब की फोर्सेस ने 900 ब्रिटिश रेजिडेंट्स को यहां पर पकड़ा, लीडिंग टू बीबी घर मैसेकर। और जो बीबी घर मैसेकर है ये आजादी का अमृत महोत्सव में हाईलाइट किया गया था, राइट। कानपुर में बीबी घर मैसेकर, दिस वाज हाईलाइटेड इन द आजादी का अमृत महोत्सव। देन तांत्या टोपे ने मिलिट्री ऑपरेशंस को लीड किया था। आजमुल्ला खान जो थे ये नाना साहिब के एडवाइजर थे, सारी नेगोशिएशंस ही वाज द वन हु वाज लीडिंग। लखनऊ में बेगम हजरत महल थी। प्रोलॉन्ग सीज ऑफ ब्रिटिश रेजिडेंसी, यहां पर हेनरी लॉरेंस जो ब्रिटिश रेजिडेंट है ही वाज किल्ड, और बिजरिस कादिर सन ऑफ वाजिद अली शाह को नवाब बनाया गया। मामू खान एंड अहमदुल्ला शाह इन्होंने मिलिट्री ऑपरेशंस को लीड किया था एट लखनऊ और अवध। डन। सेंट्रल इंडिया में वी हैड झांसी, यहां पे रानी लक्ष्मीबाई है, डिफेंडेड झांसी अगेंस्ट द फोर्सेस ऑफ रोज, एंड रानी लक्ष्मीबाई fought in मेल अटायर और लीडिंग हर ट्रूप्स पर्सनली। झांसी फोर्ट के ऊपर सीज मार्च टू अप्रैल चला था। तांत्या टोपे ने ट्राई किया था टू रिलीव झांसी बट वाज डिफीटेड एट बेटवा। और एक नाम जो मैं लिखना भूल गया, झलकरी बाई, ये शी वॉज द वन वुमेन हु ड्रेस्ड लाइक रानी लक्ष्मीबाई टू डोज द ब्रिटिश व्हेन लक्ष्मीबाई हैड टू एस्केप फ्रॉम द फोर्ट। झलकरी बाई लुक लाइक ऑफ रानी लक्ष्मीबाई बनी थी। इनका नाम भी आजादी का अमृत महोत्सव में हाईलाइट हुआ है। ठीक है। देन वी हैव ग्वालियर। ग्वालियर में तांत्या टोपे वॉज द लीडर, और यहां पर तांत्या टोपे ने अपनी गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स को यूज किया था। जयाजी राव सिंधिया महाराज ऑफ ग्वालियर रिमेन्ड लॉयल टू ब्रिटिश, दैट वाज अ सेटबैक। और इसके बाद रानी लक्ष्मीबाई डाइड फाइटिंग नियर ग्वालियर इन 1858, राइट। देन अदर सिग्निफिकेंट एरियाज में आता है बिहार का नाम। बिहार में वी हैव कंवर सिंह, बहुत एजेड पर्सन है, लेड ट्रूप्स अगेंस्ट ब्रिटिश एट अरहा, और कंवर सिंह रिकैप्चर्ड आजमगढ़ फ्रॉम ब्रिटिश। देन सीज ऑफ अरहा सॉ सिविलियंस एंड ऑफिशियल रेजिस्ट रेबल, एंड अमर सिंह कुंवर सिंह ब्रदर कॉन्टिन्यूड रेजिस्टेंट आफ्टर कुंवर सिंह डेथ। तो ये दोनों नाम याद रखना, कुंवर सिंह एंड अमर सिंह।
फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला शाह थे और यहाँ पे मौलवी साहब ने 60,000 सोल्जर्स की एक आर्मी बनाई थी एंड प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ एज इमामुल मुस्लिमीन एंड कॉल्ड फॉर जिहाद अगेंस्ट ब्रिटिश बट collaborated with Hindu leaders emphasizing Hindu Muslim unity. Right? This was a very important fact. बरेली में खान बहादुर खान थे, proclaimed himself as नवाब नाजिम of रोहिलखंड, established parallel government at बरेली. अब ये फैक्ट याद रखना, खान बहादुर खान established parallel government at बरेली और इन्होंने बहादुर शाह जफर के नाम पे क्वाइंस भी इंट्रोड्यूस किए थे टू प्रूव अ पॉइंट कि दिस इज रिवाइवल ऑफ मुगल एम्पायर. देन वी हैव जगदीशपुर, यहां पर कुंवर सिंह थे, सेंटर ऑफ रिवोल्ट था ये बिहार में. कुंवर सिंह ने जगदीशपुर का एक बैटल लड़ा था ब्रिटिश के अगेंस्ट, ये फैक्ट याद रखना. कुंवर सिंह फॉट बैटल ऑफ जगदीशपुर और सारे जो लोकल जमींदार और पेजेंट्स थे दे सपोर्टेड हिज कैंपेन. डन. अब ब्रिटिश रिस्पॉन्स की बात करते हैं. सबसे पहले सप्रेशन दिल्ली में स्टार्ट करते हैं. सीज ऑफ दिल्ली जून टू सितंबर 1857, यहां पे लीड किया जॉन निकलसन ने एंड रिकैप्चर्ड इट इन सितंबर. ब्लोइंग फ्रॉम गन्स मेथड यूज किया गया था, तोपों के साथ बांध बांध के लोग दे वर टॉर्न अपार्ट. हडसन्स हॉर्स इररेगुलर कैवेलरी यूनिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. हडसन जो अपने हॉर्सेस की एक पूरी कंटिजेंट लेके आया कैवेलरी की एंड बहादुर शाह जफर कैप्चर्ड ऑन 21 सितंबर. अगर हम लखनऊ की बात करें तो सबसे पहले हेनरी हैवलॉक और फिर जेम्स आउटरैम यहां पे आते हैं, लेकिन फाइनली इसको जो रेस्क्यू किया वो कॉलिन कैम्बल ने किया. विक्टोरिया क्रॉस एक्शन ऑफ विलियम रेनॉर एक बहुत फेमस यहां का इवेंट हुआ था, राइट. फेमस विक्टोरिया क्रॉस एक्शन ऑफ विलियम रेनॉर एट लखनऊ. देन यहां पर सिख रेजिमेंट ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था ब्रिटिश को सपोर्ट करने के लिए. सो लखनऊ में ब्रिटिश को फाइनली सरवाइव कराने में सिख रेजिमेंट का एक इंपॉर्टेंट रोल था. कानपुर में हेनरी हैवलॉक लीड करता है फोर्सेस को और नाना साहेब को डिफीट करता है एट बिथूर. और यहां पर व्हीलर्स ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, जनरल नील ने यहां पे कंटिन्यू किया था और तांटिया टोप्पे वाज टू रिकैप्चर कानपुर फेल्ड एंड देन फाइनली ही इलोप्ड. अगर हम अब मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, रीइंफोर्समेंट्स फ्रॉम ब्रिटेन, ट्रूप्स डाइवर्टेड फ्रॉम क्रीमियन वॉर एंड पर्शियन एक्सपीडिशन. रशिया से क्रीमियन वॉर चल रही थी, वो 1856 में खत्म हुई है. साथ ही साथ ब्रिटिश आर्मी को क्रीमिया से इंडिया भेजा गया. पर्शियन एक्सपीडिशन चल रहे थे, वहां से भी आर्मी को वापस भेजा गया. नेवल ब्रिगेड फॉर्म्ड फ्रॉम शिप क्रूज फॉर लैंड ऑपरेशंस. HMS Shannon's naval brigade played a crucial role in relief of Lucknow. 35,000 fresh troops came from England and Enfield rifle replaced older brown best muskets for British troops and they had no inhibitions using the grease cartridges, so they automatically got an upper hand. एक तो reinforcement आ गई, दूसरा better ammunition मिल गया. Then loyal Indian troops की अगर बात करें, गुरखा, सिख, पठान्स remained largely loyal to British. Proben's Horse, a cavalry regiment of Punjabi Muslims, fought for the British. Sikh regiment from Punjab played crucial role in recapturing Delhi. जो गुरखा राइफल्स थे distinguished themselves in various campaigns. हैदराबाद contingent under Salar Jung 1 supported British. तो princely states या जो native states हैं, they all supported the British. अगर हम बात करें strategic reforms की, for analytical वाले facts जो आ जाते हैं, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल इंडिया फील्ड फोर्स अंडर हुइड-रोज, एक पूरी सेंट्रल इंडिया फील्ड फोर्स बनाई गई जिसने इसको मॉनिटर किया पूरी तरह से एग्जीक्यूट करने में. रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ कमांड स्ट्रक्चर विद सेपरेट कमांड्स फॉर बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास, तीनों की सेपरेट कमांड्स बना के सेंट्रल के साथ उसकी कोऑर्डिनेशन करवा दी गई. पंजाब में मूवेबल कॉलम फॉर्म्ड अंडर जॉन निकलसन फॉर रैपिड रिस्पॉन्स. Introduction of new tactics like flying columns for swift military action, improved intelligence gathering through loyal Indian informants. तो ये सारे methods use करके they busted all the chain of the rebels and then it became much easier for them to crush the mutiny or the revolt. अगर political measures की बात करें तो एक पास हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858. कंपनी का रूल खत्म हुआ, क्राउन को पावर ट्रांसफर की गई
लंदन में इंडिया ऑफिस बना, हेडेड बाय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, और वाइसरॉय अपॉइंटेड एज क्राउन रिप्रेजेंटेटिव एंड रिप्लेसिंग गवर्नर जनरल हु विल नाउ जस्ट लुक आफ्टर द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। और इंडियन सिविल सर्विसेज को अब एडमिनिस्टर करेंगे, इसके लिए नए रिफॉर्म्स होंगे जो भी हम आगे पढ़ देंगे, राइट। देन क्वींस प्रोक्लामेशन 1 नवंबर 1858 को, इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इंडियन, पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन रिनाउंस्ड, एमनेस्टी ऑफर्ड टू ऑल रेबल्स हु हैड नॉट डायरेक्टली किल्ड ब्रिटिश सब्जेक्ट्स, एंड देन अफर्म ट्रीटीज एंड एंगेजमेंट्स मेड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी, और रिलीजियस न्यूट्रलिटी प्रॉमिस कर दी। अब प्रिंसली स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करने का टाइम है, बिकॉज दे हैव रिमेन्ड लॉयल। कैनिंग ने एक स्टेटमेंट दी थी दैट इफ द प्रिंसेस वुड हैव टर्न्ड डिसलॉयल आई वुड हैव कम बैक, राइट, आई वुड हैव पैक्ड माय बैग्स। अब क्या हुआ, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स में डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को अबेंडन कर दिया। देयर विल बी नो मोर एनेक्सेशन ऑन द बेसिस ऑफ नो लीगल हेयर। अब रादर आपको नेचुरल हेयर नहीं भी है तो आपको राइट टू अडॉप्शन जो है वो रिकॉग्नाइज करके दे दिया, यू कैन अडॉप्ट अ चाइल्ड। मैसूर रिस्टोर टू हिंदू रॉयल फैमिली इन 1881 रिवोल्ट के बाद, सो दैट इंडियन प्रिंसेस शुड रिमेन मोर लॉयल। अब ये फैक्ट याद रखना, नया है इंट्रोडक्शन ऑफ सनत्स ट्रीटीज, ये प्रिंसली स्टेट्स को प्रिविलेजेस ग्रांट करती थी और गारंटी करती थी कि आपके प्रिविलेजेस को ब्रिटिश प्रोटेक्ट करेंगे। सनत्स वर इंट्रोड्यूस्ड। और एक इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंपीरियल कैडेट क्रॉप्स, ये बाद में बनाया गया था 1901 में, फॉर प्रिंसली स्टेट एलिट्स। इनको अपने साथ जोड़ के रखने के लिए इनके लिए इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स बनाया गया 1901 में। विश्वास, you want Komal ma'am's classes? Any specific reason? Hi Arpit, good morning. यादव। अब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की। रिवोल्ट के बाद इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 से लेजिस्लेटिव काउंसिल इंट्रोड्यूस हुए थे। आई होप दिस यू रिमेंबर, कैनिंग के टाइम पर, राइट। 6 to 10 इंडियन टोटल मेंबर्स थे, जिनमें से 3 इंडियंस के लिए प्रोविजन किया गया था। आईपीसी तैयार किया 1860 में और सीआरपीसी 1861 में, ताकि जुडिशियल लीगल सिस्टम को थोड़ा सा बेटर किया जा सके। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट्स इन कैलकाटा, बॉम्बे, मद्रास 1862 में। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक वर्क्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड पुलिस रिफॉर्म्स के लिए पुलिस कमीशन 1860, जिसकी 1861 की रिपोर्ट आई थी। डन, ये हो गए एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। अब अगर हम बात करें सप्रेशन ऑफ रिवोल्ट, इसको मैं पढ़ूंगा नहीं क्योंकि ये ऊपर एक बार हो गया। यहाँ पे तुम्हारी रिवीजन के लिए मेजर सेंटर्स में दिल्ली में बहादुर शाह जफर है, कानपुर है, झांसी है, लखनऊ है, और फाइनल फेज ग्वालियर में है। मोपिंग ऑफ ऑपरेशन तांतिया टोपे वाले, सेंट्रल इंडिया एंड राजस्थान, बिहार एंड झारखंड। यहां तक तुम एक बार इसको दोबारा पढ़ लेना, सिर्फ रिवीजन हो जाएगी सेंटर्स और लीडर्स के नाम की, जिसपे मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस आ जाते हैं। देन कॉन्सिक्वेंसेज एंड इंपैक्ट की अगर हम बात करें, इमीडिएट आफ्टरमैथ में रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन आर्मी। अब था प्रमोशन ऑफ यूरोपियन टू इंडियन सोल्जर, प्रपोर्शन जो था यूरोपियंस टू इंडियन सोल्जर इंक्रीज्ड 1:2, राइट। रिक्रूटमेंट पॉलिसीज फेवर्ड मार्शियल रेसिस, वही सिख, राजपूत, जाट, मराठास, गुरखास, जिन्होंने ब्रिटिश को सपोर्ट किया था, दे वर द न्यू मार्शियल रेसिस। फॉर्मेशन ऑफ न्यू रेजिमेंट्स लाइक प्रोबेंस हॉर्स एंड हडसन्स हॉर्स, ये वो इंडियन सोल्जर्स जिन्होंने ब्रिटिश को सपोर्ट किया है। आर्टिलरी बिल्कुल यूरोपियंस को दे दी गई एक्सक्लूसिवली, इंडियंस के पास आर्टिलरी नहीं होगी। और बंगाल आर्मी को एबॉलिश करके पंजाब फ्रंटियर फोर्स क्रिएट की गई। दे वर लॉयल, सो इनको ज्यादा हाईलाइट किया गया। अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव की बात करें, इंडियन सिविल सर्विसेज ओपन टू इंडियंस इन 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट आ गया। इसी के बाद सत्येंद्रनाथ टैगोर बिकेम द फर्स्ट इंडियन आईसीएस इन 1863। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक वर्क्स एंड इरिगेशन आया। पुलिस एक्ट 1861 में फॉर रीऑर्गेनाइजिंग पुलिस फोर्सेस इंट्रोड्यूस किया गया। इकोनॉमिक्स में इंक्रीज फोकस ऑन रेलवे कंस्ट्रक्शन फॉर मिलिट्री मोबिलिटी। अब याद रखना 1857 के बाद, अदरवाइज इंडिया में रेलवेज 1853 में इंट्रोड्यूस हो रही हैं, बट एकदम से 57 के बाद बहुत ब्रिस्करी की तरह उसकी एक्सपेंशन की गई है, बट इट इज फॉर मिलिट्री मोबिलिटी। अभी इसके लिए ट्रांसपोर्ट उसके लिए नहीं है कि तुम्हें ट्रेड को प्रमोट करना है, इनिशियली फॉर मिलिट्री मोबिलिटी एंड देन ग्रेजुअली फॉर ट्रेड प्रमोशंस।
लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज बिकेम मोर कंजर्वेटिव, अब एक्सप्लॉयटेशन थोड़ा कम किया गया सो दैट पेजेंट अनरेस्ट ना बढ़े। इंडिगो कल्टीवेशन एक्ट 1862 टू प्रोटेक्ट पेजेंट्स फ्रॉम फोर्स कल्टीवेशन, ये रिवोल्ट का एक इंपैक्ट था कि इंडिया में जो अपने पेजेंट हैं वो ब्रिटिश से ज्यादा अनॉयड ना रहे, तो थोड़ा उनके लिए रिफॉर्म कर देते हैं। हाई कोर्ट्स इन प्रेसिडेंसी टाउन्स बनवा दी गई बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास में, ताकि लोगों को लगे जस्टिस एट डोर स्टेप पॉसिबल है। एंड इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया और लाइसेंस टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया टू मेक गुड द लॉसेस सफर ड्यूरिंग द रिवोल्ट, राइट। अब मैं यहां पे तुम लोगों को याद करवाना चाहता हूं बाय आस्किंग यू अ सिंपल क्वेश्चन कि इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस करने का क्रेडिट किसको जाता है? बेटा क्वेश्चंस मैं कल से कराऊंगा ना एक्सप्लेन, आज मैं सिर्फ एक टॉपिक रिवाइज करा रहा हूं, फिर उसके क्वेश्चंस करेंगे। जेम्स विल्सन कमेटी फॉर इनकम टैक्स। ठीक है, अब आती है बात लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस की। एंड ऑफ मुगल रूल हो गया इंडिया में, लास्ट मुगल एम्परर डिपोज्ड, सिंबॉलिक एंड ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया, रेड फोर्ट सीट ऑफ मुगल पावर कन्वर्टेड इनटू मिलिट्री बेस फॉर द ब्रिटिश, कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली, बाद में दोबारा आएगी 1911 में, अभी के लिए कलकत्ता विल बी द कैपिटल, एम्फेसाइजिंग इंपीरियल कॉन्टिन्यूटी एंड डिक्लाइन ऑफ उर्दू एज कोर्ट लैंग्वेज, रिप्लेस्ड बाय इंग्लिश इन एडमिनिस्ट्रेशन। डन। अब ये जो बेसिक से फैक्ट होते हैं ना, कई बार वी जस्ट टेंड टू इग्नोर देम जब हम आंसर दे रहे होते हैं। इसके बाद कॉम्युनल डिवाइड आ गया, ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल इंटेंसिफाइड बिकॉज दे हैव सीन हिंदू मुस्लिम यूनिटी इन द रिवोल्ट, सीड्स ऑफ सेपरेट हिंदू एंड मुस्लिम पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का बनाना, इसी की एक कॉन्टिन्यूटी थी जो इन्होंने रिवोल्ट में हिंदू मुस्लिम यूनिटी को देखा था। नाउ दे वर प्लानिंग द थिंग्स इन द डायरेक्शन वेयर दे कैन ब्रेक दिस हिंदू मुस्लिम यूनिटी। Differential treatment of Hindu-Muslim elites in administration, educational policies favoring English over Persian affected the Muslim elite। तो पहले वो अनॉयड हुए, जब वो ज्यादा अनॉयड हुए तो इन्होंने को ऑप्शन ऑफ मुस्लिम की पॉलिसी अडॉप्ट की थी, जिसके बाद ये अलीगढ़ मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं और फिर धीरे धीरे उनको इंग्लिश की तरफ इंट्रोड्यूस करते हैं। अगर हम ब्रिटिश पॉलिसीज की बात करें, अग्रेसिव वेस्टर्नाइजेशन से अब थोड़ी कंजर्वेटिव ओरिएंटलिज्म की तरफ वापसी हो गई, तो दैट की रिवोल्ट जो है उसका जो लॉन्ग टर्म इंपैक्ट है उसको मिनिमाइज किया जा सके। अब यहां पर अगर तुम्हें याद हो पिछली क्लासेस में, तो मैंने को रिलेशन बताया था तुम्हें। 1857 का रिवोल्ट जिस टाइम पर हुआ, उसके बाद ब्रिटिश पॉलिसीज में इतना सी चेंज आने का एक दूसरा कारण भी था, इंटरनेशनल डायमेंशन, उसको याद रखते हैं। 1860s, 70s, 80s वाले जो साल हैं, ये वो साल हैं जब अमेरिका में भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा है, जर्मनी में भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा है, और मेजी रेस्टोरेशन के बाद जापान में भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा है। अब एक इंटेंस कंपटीशन है फॉर ओवरसीज मार्केट्स, एंड ब्रिटिश नेवर वांटेड कि इंडिया इनके हाथ से निकल जाए। तो मोर रिफॉर्म्स विल लीड टू मोर अनरेस्ट इन इंडिया, मोर अनरेस्ट मे लीड टू मोर रिवोल्ट्स इन इंडिया, एंड मोर रिवोल्ट्स मे लीड टू ब्रिटिश लूजिंग कंट्रोल ओवर इंडिया। सो वो सोचते हैं थोड़ी देर के लिए कंजर्वेटिव हो जाओ भाई, इंडिया को रिफॉर्म करने की बजाय इकोनॉमिकली यूज करो, दैट इज अ बेटर प्रोपोजिशन फॉर ब्रिटिश इंटरेस्ट। ठीक है, इसके बाद इंक्रीज रिलायंस ऑन प्रिंसली स्टेट्स एज बल्वर्क्स ऑफ एम्पायर, ये हमें बचाएंगे, राइट। एक वो लॉर्ड कैनिंग की स्टेटमेंट भी थी, इफ यू गाइज रिमेंबर, कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द स्टॉर्म द प्रिंसली स्टेट्स एक्टेड लाइक द ब्रेक वाटर्स, राइट। तो इन्होंने हमें बचा दिया था, ये लॉर्ड कैनिंग का स्टेटमेंट है। लिटन ने इंपीरियल असेंबलीज इंट्रोड्यूस किया था फ्यूडेटरी रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए, राजाओं के साथ क्लोज बॉन्डिंग के लिए। कॉशियस अप्रोच टू सोशल रिफॉर्म्स कर दिया गया था। और अगर तुम बात करो पार्टीशन ऑफ बंगाल की, वो भी हिंदू मुस्लिम यूनिटी को खत्म करने के लिए इसी की कॉन्टिन्यूटी में एक स्टेप था 1857 के रिवोल्ट के बाद। अगर हम इकोनॉमिक इंपैक्ट की बात करें तो इंक्रीज्ड इकोनॉमिक ड्रेन, इस पे कोई चेंज नहीं किया गया। कॉस्ट ऑफ सप्रेसिंग रिवोल्ट चार्ज टू इंडियन रेवेन्यू, कि जितना खर्चा है भाई इंडिया पूरा करेगा, इसके कारण एक्सप्लॉयटेशन बढ़ा। इंडिया का जो डेट था वो 1857 में था 73 मिलियन पाउंड, और वही 5 साल बाद 98 मिलियन पाउंड कर दिया गया कि तुमने इतना नुकसान किया है, उसके लिए कंपनसेट भी अब तुम ही करोगे। ठीक है, मिलिट्री रेवेन्यू जो था एक्सपेंडिचर, वो भी इंक्रीज किया गया, बर्डन इंडियन फाइनेंसिस।
रेलवेज का सारा जो खर्चा था, चाहे वो कमर्शियल पर्पस के लिए हो या मिलिट्री पर्पस के लिए हो, वो भी इंडिया के ऊपर डाल दिया गया, राइट। जो वो था गारंटी सिस्टम, राइट। तो अब सारा खर्चा इंडिया पूरा करेगा। लैंड रेवेन्यू में थोड़ी कंजर्वेटिव पॉलिसीज लेके आए, लैंडलॉर्ड्स और तालुकदार्स को सपोर्ट करना शुरू किया, उनके जो स्टेट्स उठाए गए थे इनाम कमीशन के बाद कुछ रिस्टोर किए गए। परपेचुअल सेटलमेंट एक्सटेंडेड टू पार्ट्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस, अवध को थोड़ा खुश किया गया। एंड पंजाब टेनेंसी एक्ट 1868 टू प्रोटेक्ट द टेनेंट्स राइट्स, ताकि जहां जहां पे हमारे लॉयल लोग हैं उनको एटलीस्ट अपने साथ लॉयल रखा जाए इन द लॉन्ग रन। इंडस्ट्रियल एंड ट्रेड पॉलिसी में ग्रेजुअल इंडस्ट्रियलाइजेशन अंडर ब्रिटिश सुपरविजन, प्रेफरेंस फॉर ब्रिटिश गुड्स इन इंडियन मार्केट्स। एक एग्जांपल ये याद रखना, इंडियन टैरिफ एक्ट 1894 ने 5% ड्यूटी ऑन इंपोर्टेड कॉटन गुड्स लगा दिया था, ठीक है। देन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स 1836 और कैलकाटा का चैम्बर बनाया था 1853 में। जूट इंडस्ट्री और कॉटन मिल्स को बॉम्बे में थोड़ा डेवलप किया गया ताकि इंडिया में ज्यादा अनरेस्ट ना हो। सोशल एंड कल्चरल इफेक्ट्स अगर देखें, एजुकेशन पॉलिसी, एम्फेसिस ऑन इंग्लिश एजुकेशन रिड्यूस फॉर सम टाइम, ठीक है। करेंगे इंग्लिश को प्रमोट, लेकिन एम्फेसाइज नहीं करेंगे ताकि तुम्हारे देश में जो अनरेस्ट आया उसको थोड़ा सा चेक किया जा सके। सपोर्ट फॉर ट्रेडिशनल इंडियन लर्निंग इंस्टीट्यूशंस, पंजाब यूनिवर्सिटी 1882 में बनाई विद एम्फेसिस ऑन ओरिएंटल लर्निंग। वुड्स डिस्पैच रिकमेंडेशन इंप्लीमेंटेड मोर कंजर्वेटिवली, धीरे धीरे उसको इंप्लीमेंट करेंगे। एंड मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ में बनवाएंगे, सो दैट हिंदू भी खुश, मुस्लिम भी खुश, सिख भी खुश, कोई भी अब ये फील ना करे दैट द एलियन कल्चर इज बीइंग फोर्सफुली इंपोज्ड और सुपर इंपोज्ड ऑन इंडियन सिविलाइजेशन, राइट। रिलीजियस पॉलिसी में नॉन इंटरफेरेंस इन रिलीजियस मैटर स्ट्रेस, क्वीन विक्टोरिया ने साफ बोल दिया था रिलीजियस न्यूट्रलिटी रहेगी, आई विल नॉट बी इंटरफेयरिंग इन द कस्टमरी बिलीफ्स। हिंदू एंड मुस्लिम पर्सनल लॉ कोडिफाइड एंड प्रोटेक्टेड, ये ब्रिटिश ने इंटेंशनली उस टाइम पे किया। स्टेट विड्रू फ्रॉम मैनेजमेंट ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, दो सपोर्ट फॉर क्रिश्चियन मिशनरी कंटिन्यूड, लेकिन ऑफिशियल बैकिंग कम कर दी गई, ऑस्टेंसिबली अब ऑफिशियली सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। सोशल रिफॉर्म में राइज ऑफ सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट रिवोल्ट के बाद कंटिन्यू रहा। इंक्रीज एम्फेसिस ऑन रिवाइविंग इंडिजीनियस ट्रेडिशंस, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ब्रह्मो समाज का रेफरेंस आता है और साथ में थियोसॉफिकल सोसाइटी की इंडिया ब्रांच का। नाउ दे वांटेड कि हम अपने कल्चर को रिवाइव करें, बैक टू वेदास जैसी कॉल। वर्नाकुलर प्रेस एंड लिटरेचर आता है और डेवलपमेंट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म रूटेड इन कल्चरल रिवाइवल, यहीं से फिर वो बर्थ ऑफ कांग्रेस के साथ हमारा लिंक जुड़ता है। अगर हिस्टोरिकल डिबेट की बात करें तो सिपॉय म्यूटनी वर्सेस नेशनल रिवोल्ट की बात होती है। ब्रिटिश हिस्टोरियन के जो हैं वो सिपॉय म्यूटनी बोलते हैं, इंडियन हिस्टोरियन आरसी मुजुमदार कहते हैं नेशनल करैक्टर डिबेटेबल है। वीडी सावरकर इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 जो 1909 में आई है, वो इसे नेशनलिस्ट अपराइजिंग का नाम देते हैं। बस ये तीन नाम याद कर लो, सफिशिएंट है। पॉपुलर पार्टिसिपेशन की अगर बात करें, पेजेंट एंड सिविलियन इन्वॉल्वमेंट इज कंटेस्टेड, कि कितने ज्यादा ये आए हैं, ज्यादातर सिपॉयज ने किया है। रीजनल वेरिएशंस इन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, की अगर कुछ रीजन्स ने सपोर्ट किया रिवोल्ट को, तो पंजाब हो गया, मराठवाड़ रीजन हो गया, इन्होंने ब्रिटिश को सपोर्ट किया, तो इसको नेशनल कैसे बोला जाए। अवध पेजेंट्री एक्टिव पार्टिसिपेशन वर्सेस लिमिटेड इन्वॉल्वमेंट इन बंगाल। अगर हम रिलीजियस एंड कल्चरल डायमेंशन की बात करें तो डिबेट ऑन रोल ऑफ रिलीजियस सिंबलिज्म एंड रिटोरिक, कि यार कौन से रिलीजियस सिंबल यूज कर दिए गए इसमें। देन क्वेश्चन ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी ड्यूरिंग द रिवोल्ट, ब्रिटिश हिस्टोरियंस इसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। यूज ऑफ रिलीजियस सिंबल्स लाइक चपाती एंड लोटस सर्कुलेशन, अब जो लोटस है वो तो हिंदू के साथ जुड़ता है, चपाती कैसे, ये तो एक न्यूट्रल है, सेकुलर सिंबल हो गया। लीडरशिप की बात करें तो वो कहते हैं सेंट्रलाइज प्लानिंग वर्सेस स्पॉन्टेनियस आउटब्रेक। डिबेट्स ऑन एग्जिस्टेंस ऑफ प्री प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी, कोई प्री प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी थी कि नाना साहेब, तांतिया टोपे, लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह आपस में बात कर रहे हैं। लोकल ग्रीवेंसीज रिवोल्ट को शेप करते जा रहे थे, जिस जिस एरिया में जो कॉमन प्रॉब्लम्स थी उसके कारण लोगों ने अकॉर्डिंगली पार्टिसिपेट कर दिया। चपाती डिस्ट्रीब्यूशन बिफोर रिवोल्ट एज अ पॉसिबल कम्युनिकेशन मेथड, बट वी हैव वेरी लिमिटेड एविडेंस फॉर इट। इफेक्टिवनेस ऑफ रेबल लीडरशिप, मिलिट्री स्ट्रेटजीज बहुत ही वियर्ड थी इनकी। ब्रिटिश के साथ अगर डिस्कस किया जाए कोई कमांड स्ट्रक्चर नहीं था। तांतिया टोपेज गुरिल्ला टैक्टिक्स वर्सेस ब्रिटिश कन्वेंशनल वॉरफेयर, तो वी वर नॉट प्रिपेयर्ड एंड प्लान्ड। प्रिंसली स्टेट्स की डिबेट ऑन लॉयल्टी एंड पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन रूलर्स, एनालिसिस ऑफ स्ट्रेटेजिक चॉइसेस मेड बाय प्रिंसेस, जैसे कि कंट्रास्टिंग रोल्स ऑफ सिंधिया ऑफ ग्वालियर एंड निजाम ऑफ हैदराबाद, बिल्कुल पार्टिसिपेट
नहीं किया रिवोल्ट में, रादर ब्रिटिश को पूरा सपोर्ट कर दिया, हैदराबाद ने भी और ग्वालियर ने भी, राइट। अगर कंटिन्यू करें तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो वीडी सावरकर ने नाम दिया 1909 में, बहुत सारे हिस्टोरियंस इसको क्वेश्चन करते हैं, कंटेस्ट करते हैं, क्योंकि ज्योग्राफिकल स्प्रेड लैक था, पूरे इंडिया में स्प्रेड नहीं हुआ। ऑफिशियल रिकॉग्निशन ऑफ द टर्म बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2007, जब मनमोहन सिंह जी एज प्राइम मिनिस्टर 150th एनिवर्सरी ऑफ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट कर देते हैं। देन बिपिन चंद्र क्रिटिक करते हैं नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी की और डिबेट्स कंटिन्यू करते हैं। अब आता है पील कमीशन, जो कुछ इंपॉर्टेंट कमीशंस थे, बट हियर लेट्स हैव अ शॉर्ट ब्रेक एंड ओके करवा देंगे सर। ऋषभ यू विल गेट दिस नोट, डोंट वरी। जो मैंने आज ये जिस पेज पे तुम्हें ये रिवाइज कराया, अगर इस पेज पे हम पूरे टॉपिक रिवाइज करेंगे, जैसे अभी आई सपोज 1 घंटा हुआ है और 1857 का हमारा रिवीजन भी हुआ है और एडिशनल फैक्ट्स भी मिले हैं, कल से चलो क्वेश्चंस भी बीच में ऐड हो जाएंगे। 1857 के PYQ सारे मैं कल कराऊंगा साथ साथ, और उसके बाद अगला टॉपिक चलेगा। बट इफ दिस विल बी द पेज, विल यू बी कंफर्टेबल? क्योंकि इसी पेज पे हम 100 डेज में सारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो अगर किसी को लग रहा है पेज ज्यादा है या थोड़ा स्लो करना है या कुछ एडिशंस करने हैं, पहले एक बार उसके ऊपर बात करते हैं। ₹2500 इसलिए लिए थे, यहां पे भी बोल लो, ये मत सोचना कि चैरिटी हो रही है, कोई चैरिटी नहीं है। अगर लग रहा है फास्ट है तो बताओ, अगर लग रहा है ओवरबर्डनिंग है तो बताओ, अगर लग रहा है कि कुछ कमी है वो बताओ, एंड फील फ्री टू से वट एवर यू फील, सो दैट इस साल प्री का रिजल्ट और बेटर आए पिछले सालों से। स्पीड ज्यादा लग रहा है। तुमने हिस्ट्री मॉडर्न पढ़ी हुई है? पहले पढ़ी है, बस वैसी पढ़ी है। कितनी देर पहले? ओके, तो आज ये शीट पढ़ना एक बार, जब इसको पढ़ लोगी फिर अगर तो चीज़ें समझ आ गई, ठीक है, तो कल आके बताना कि सर थोड़ा स्लो कर दो, ठीक है। और कोई? ये कितने प्यारे बच्चों यार, कुछ बोलते नहीं हो। अगर जो क्वेश्चंस और वो अगर समझ में आ रहे हैं, आंसर भी समझ में आ रहा है, तो फिर रिलेवेंट है आजकल। ओके, ठीक है। तो पील कमीशन, इसको ऑफिशियली बोलते हैं रॉयल कमीशन ऑन रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन आर्मी, और ये रिवोल्ट के बाद रिकमेंड करता है रीऑर्गेनाइजेशन, राइट। इसने सजेस्ट किया था कि प्रोपोर्शन ऑफ 1 यूरोपियन टू 2 इंडियन सोल्जर होना चाहिए, एडवाइज अगेंस्ट मिक्सिंग ऑफ कास्ट एंड कम्युनिटीज विद इन रेजिमेंट्स, कास्ट बेस्ड रेजिमेंट्स बनाने की बात की है, रिकमेंडेड क्रिएशन ऑफ स्टाफ कॉर्प्स फॉर ब्रिटिश ऑफिसर सर्विंग इन इंडिया, इनको अलग रखा जाए। फिर पुलिस कमीशन 1860 में बना टू रिऑर्गेनाइज पुलिस, रिकमेंडेड क्रिएशन ऑफ सिविल कॉन्स्टेबलरी सेपरेट फ्रॉम मिलिट्री। इससे पहले सिविल कॉन्स्टेबल्स होते ही नहीं थे, दरोगा होते थे, डीएसपी बना देते थे, एसपी लगा देते थे, कांस्टेबल्स होते नहीं थे, वो आर्मी को यूज करते थे। तो उन्होंने बोला भाई सिविल कॉन्स्टेबलरी लेके आओ, प्रॉपर उसका यूज करो। सजेस्टेड अपॉइंटमेंट ऑफ आईजी पुलिस फॉर ईच प्रोविंस लेड टू एनैक्टमेंट ऑफ इंडियन पुलिस एक्ट 1861 एंड इंट्रोड्यूस कॉन्सेप्ट ऑफ सिविल पुलिसिंग इन इंडिया। रिवोल्ट ऑफ 1857 से पहले सिविल पुलिस थी ही नहीं, सारा काम आर्मी ही करती थी। सो 1861 ने इंडिया को सिविल पुलिस एक्ट बना के दिया। फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 पास किया गया, इंट्रोड्यूस लेजिस्लेटिव काउंसिल एट सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेवल, अलाउड फॉर लिमिटेड इंडियन पार्टिसिपेशन इन लेजिस्लेशन। राइट टू वोट नहीं दिया था, राइट टू डिस्कशन दिया गया था। Established legislative councils in बंगाल, मद्रास, बॉम्बे प्रेसिडेंसीज, एग्जेक्टिव काउंसिल्स लॉ मेकिंग पावर्स ले गए, पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया अंडर लॉर्ड कैनिंग। पोर्टफोलियो सिस्टम सब समझते हैं कि एक एक मेंबर को एक एक डिपार्टमेंट एलोकेट किया गया। हाई कोर्ट एक्ट 1861 ने प्रेसिडेंसी टाउन्स में हाई कोर्ट स्टैब्लिश की, जिसने की एग्जिस्टिंग वहां पर पहले सब में सुप्रीम कोर्ट्स थी और सदर अदालतें थी, सदर निजामत एंड सदर दीवानी अदालत, उनको मर्ज कर दिया। और अब कलकत्ता हाई कोर्ट सबसे पहले 1862 में बना था, फिर बॉम्बे, फिर मद्रास। अपॉइंटमेंट ऑफ इंडियन जजेस टू हाई कोर्ट्स, ये प्रोविजन दिया गया था ओरिजिनल एक्ट में, एंड स्टैंडर्डाइज जुडिशियल सिस्टम अक्रॉस ब्रिटिश इंडिया।
एक कॉमन जुडिशियल सिस्टम आया। फिर हमारे पास सिविल सर्विस एक्ट आया 1861 में, जिसने बोला इंडियन सिविल सर्विस कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के थ्रू होंगी, राइट। अलाउड इंडियंस टू compete फॉर सिविल सर्विसेज पोजीशन। इसी में चलते हुए 1863 में सत्येंद्रनाथ टैगोर जो थे वो फर्स्ट इंडियन बने। पहले एग्जामिनेशन सिर्फ लंदन में होता था और एज लिमिट एंड अदर रिस्ट्रिक्शन इनिशियली फेवर्ड ब्रिटिश कैंडिडेट्स। फिर हमने एजिटेशंस किए थे साइमल्टेनियस एग्जामिनेशन के लिए, बट 1920s में जाके एग्जाम स्टार्ट होगा, इससे पहले नहीं। आईपीसी 1860 में आया, कॉम्प्रिहेंसिव सिविल कोड फॉर ब्रिटिश इंडिया, प्राइमरीली ड्राफ्टेड बाय मैकॉले। इसमें सेक्शन 124A इंट्रोड्यूस हुआ था, ऑफेंस ऑफ सेडिशन, जिसे अभी रिसेंटली जो चेंज किया गया है भारतीय न्याय संहिता वगैरह में, उसमें इसको डीक्रिमिनलाइज किया गया है। तो इसलिए मैंने इसको स्पेसिफिकली मेंशन किया कि ये न्यूज में रहा है, तो इसको हाईलाइट कर लो अपने पास। आईपीसी में 124A था सेडिशन के लिए। यूनिफाइड क्रिमिनल लॉ अक्रॉस ब्रिटिश कंट्रोल टेरिटरीज इन इंडिया एंड रिमेन्ड इन फोर्स विद मॉडिफिकेशंस इन इंडिपेंडेंट इंडिया। अब जाके भारत आजाद हुआ है, जब सारे का सारा आईपीसी सीआरपीसी चेंज हुआ है, राइट। फिर क्राउन्स लैंड रिजम्पशन पॉलिसी 1858 में आई थी, ये हमने मिस किया होता है रूटीन के लेक्चर्स में, राइट। ये याद रखना, रिवर्स डलहौजीज डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जो क्राउन्स लैंड रिजम्पशन पॉलिसी थी, इसने डलहौजी के डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को खत्म किया था। recognize adoption rights of Indian rulers, Mysore state restored to adopted heir and aimed at securing the loyalty of Indian princes, part of broader policy of indirect rule post 1857. If you remember, पहले था subordinate isolation, अब किया गया था subordinate union. ये याद है सबको? जब लॉर्ड वेलेस्ली ने सब्सिडरी अलायंस इंट्रोड्यूस किया था, तब बोला गया था कि हर प्रिंस के साथ एक रेजिडेंट होगा और वो आपस में इंटरैक्ट नहीं करेंगे। उनकी स्टेट्स में ब्रिटिश आर्मी डिप्लॉय की जाएगी। बाय डिप्लॉइंग ब्रिटिश आर्मी you are bringing them in your subordination, and by appointing resident you are keeping them isolated from each other. So that was a policy of subordinate isolation. After 1857 when you realized कि princes ने unitedly तुम्हें support किया, तो तुमने बोला रेजिडेंट्स का कल्चर खत्म, अब सारे के सारे इंडियन प्रिंसेस आंसरेबल टू सिंगल अथॉरिटी, वाइसरॉय ऑफ इंडिया, राइट, बट रहेंगे उसकी सबॉर्डिनेशन में, बट यूनाइटेडली, तो पॉलिसी ऑफ सबॉर्डिनेट यूनियन। तो पॉलिसी ऑफ सबॉर्डिनेट आइसोलेशन क्रेडिट गोज टू वेलेस्ली, सबॉर्डिनेट यूनियन क्रेडिट गोज टू कैनिंग, राइट। लिख लो, याद नहीं रहना। यस, रिलीजियस वाला एक्ट सेम है। साजिद, वी विल डेफिनेटली रिपीट द थिंग्स। सबॉर्डिनेट यूनियन, पहले सबॉर्डिनेट आइसोलेशन था, फिर सबॉर्डिनेट यूनियन आ गया। फिर वुड्स डिस्पैच जो था, प्रीडेटेड द रिवोल्ट बट इंप्लीमेंटेशन अफेक्टेड आफ्टर 1857। इसने बोला था यूनिवर्सिटीज बनाओ, तो वो उसी के बाद बनी। प्रपोज कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम फॉर एजुकेशन, रिकमेंडेड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज इन प्रेसिडेंसी टाउन्स, एडवोकेटेड फॉर वर्नाकुलर एजुकेशन एट प्राइमरी लेवल, इंप्लीमेंटेड मोर कंजर्वेटिवली टू अवॉइड सोशल डिसरप्शन, राइट। पंजाब टेनेंसी एक्ट 1868 में पास किया गया, एम टू प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ टेनेंट्स इन पंजाब। ये मैंने स्पेसिफिकली इसलिए उठाया क्योंकि पंजाब में फार्मर अनरेस्ट चलता रहा, तो ये न्यूज में रहा। रिकॉग्नाइज ऑक्यूपेंसी राइट ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग टेनेंट्स, टेनेंट्स कल्टिवेटिंग लैंड फॉर 12 ईयर्स गिवन ऑक्यूपेंसी राइट्स। 12 साल से जो एक जमीन पे काम कर रहा था, उसको उसका मालिक बना दिया गया। अब किसान विद्रोह नहीं करेंगे ना। पार्ट ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी टू स्टेबलाइज रूरल सोसाइटी आफ्टर 1857, इन्फ्लुएंस सिमिलर लेजिस्लेशन इन अदर प्रोविंसेस। फिर इंडियंस आर्म एक्ट, लिटन वाला, वो भी इसी की कंटिन्यूटी में आता कि इंडियंस के पास आर्म्स होने नहीं चाहिए भाई, नहीं तो कभी भी रिवोल्ट कर देंगे, ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड पोजेशन ऑफ आर्म्स बाय इंडियंस, रिक्वायर्ड लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चर, सेल एंड पोजेशन ऑफ आर्म्स, एग्जम्प्टेड सर्टेन क्लासेस लाइक प्रिंसेस एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, सीन एज अ मेजर टू प्रिवेंट फ्यूचर आर्म्ड अपराइजिंग, क्रिटिसाइज्ड बाय इंडियन नेशनलिस्ट एज डिस्क्रिमिनेटरी। अब अदरवाइज हमने ये आर्म्स एक्ट ऑफ लिटन
राइज ऑफ नेशनलिज्म क्या पढ़ा होता है, बट इसका एक डायरेक्ट लिंक रिवोल्ट के साथ भी है। और अगर ये रिवोल्ट के आउटकम में पूछा जाए तो हम इसको सेट असाइड कर सकते थे कि यार ये तो बहुत बाद की बात है, इसका रिवोल्ट से क्या लिंक है। बट इट वॉज अ कॉन्टिन्यूअस काइंड ऑफ प्लानिंग गोइंग ऑन अमंग द ब्रिटिश ऑफिशियल सर्कल। तो उन्होंने बोला भाई इंडियंस के पास अगर आर्म्स आ गए फिर तो ये कभी भी रिवोल्ट कर देंगे, तो एक्ट ही पास कर देते हैं। ऐसे ही जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है लिटन का, वो किस लिए है, रिस्ट्रिक्शन ऑन इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर, ताकि तुम रिवोल्ट जैसी फीलिंग्स को स्प्रेड ना कर सको। अलाउड गवर्नमेंट टू सेंसर आर्टिकल्स क्रिटिकल ऑफ ब्रिटिश रूल। अमृत बाजार पत्रिका चेंज फ्रॉम बंगाली टू इंग्लिश टू अवॉइड सेंसरशिप। सर, अमृत बाजार पत्रिका के फाउंडर्स वाहेगुरु शिशिर कुमार घोष, राइट, शिशिर कुमार घोष। वो देखो उधर ऋषभ ने लिख भी दिया, शिशिर कुमार घोष। एंड मोतीलाल घोष। इल्बर्ट बिल इसलिए लेके आए थे कि जुडिशियल रिफॉर्म्स इनिशिएट हो चुके हैं, अब उन्हीं की कॉन्टिन्यूटी में इल्बर्ट बिल का इशू उठ गया रिपन के टाइम पर कि क्या इंडियन जजेस को अलाउ करना है कि नहीं करना। इसको कल वाले लेक्चर में दोबारा डिटेल में पढ़ेंगे। नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन रिवोल्ट ऑफ 1857 का एक आउटकम भी माना जाता है कि दोबारा इंडिया में ऐसा रिवोल्ट ना हो, इसलिए सेफ्टी वॉल्व थ्योरी अडॉप्ट की गई, राइट। एक ना एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 है, जो मैंने पहले भी तुम्हें बताया था, उसकी थोड़ी डिटेल है, इसको पढ़ लेना। इसको बहराम जी मालाबारी ने सपोर्ट किया था, जबकि तिलक इसको अपोज करते हैं, वो मैं कल वाली क्लास में डिटेल में कराऊंगा। इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट एजुकेशन को कंट्रोल करने के लिए। पार्टीशन ऑफ बंगाल भी रिवोल्ट के बाद हिंदू मुस्लिम यूनिटी को ब्रेक करने के लिए। मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म, सेपरेट इलेक्टोरेट, स्ट्रेट कॉन्टिन्यूटी फ्रॉम व्हाट दे वर ट्राइंग टू डू टू वीकन इंडियन नेशनलिज्म। और उसके बाद 1915 में 1919 का एक्ट है, इसको मैं करेक्ट करके कल लेके आऊंगा। मोंटेग्यो डिक्लेरेशन 1917 की। ये सारे एक्ट्स इसीलिए पास किए गए थे कि इंडियन नेशनलिज्म को वीकन किया जा सके और ब्रिटिश रूल को यहां पे स्ट्रेंथन किया जा सके, राइट। सो रिवोल्ट के साथ साथ मैंने इसका एक बहुत ही फॉरवर्ड लुकिंग डॉक्यूमेंट बना दिया जिसमें सारी इंटरलिंकिंग पॉसिबल कर दी। अब ये तुमने करना है अच्छे से रिवाइज। कल की क्लास जब हम स्टार्ट करेंगे, पहले हम करेंगे PYQs ऑफ 1857, राइट। इट विल टेक अस, अच्छा करेंगे कितने साल के, 7 to 8 ईयर्स के, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, डन। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, फिर तुम्हें 1857 का एक टेस्ट मिलेगा, बिकॉज 1857 इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो इस पे तुम्हें 20 to 25 क्वेश्चंस मिलेंगे जो तुम यहीं पे सॉल्व करोगे, फिर उसको डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल कॉल द डे। अगली क्लास में जो कल का टॉपिक होगा राइज ऑफ नेशनलिज्म अप टू कांग्रेस, उसके PYQs करेंगे, फिर अगला टॉपिक करेंगे मॉडरेट, एक्सट्रीमिस्ट एंड अदर थिंग्स, फिर तुम्हें दोबारा से 20-25 क्वेश्चंस मिलेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन अगली क्लास में जब 20 क्वेश्चंस होंगे राइज ऑफ नेशनलिज्म के, तो हो सकता है बीच में 2, 3, 4 क्वेश्चंस 1857 के फिर से हों, ताकि तुम्हारा लिंक ना टूटे। लास्ट क्लास तक आते आते यही लास्ट क्लास में 100 क्वेश्चंस हो जाएंगे, क्योंकि पिछले सारे ऐड होते जाएंगे, राइट। फिर हिस्ट्री कंप्लीट होगी, मॉडर्न इंडिया। लेट्स से अब तुम्हारी क्लास में AMC है या पॉलिटी है, वट एवर इज इट। आज तुमने पहला टॉपिक पॉलिटी का किया, बट आज तुम्हारा हिस्ट्री का टेस्ट तो हो ही सकता है ना दोबारा। फिर तुम्हारा नेक्स्ट डे अगर लेट्स से कि मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का टेस्ट है, तो उसमें 2-4 क्वेश्चन तो हिस्ट्री के दोबारा आ ही सकते हैं। और कितना ही मजा है कि जिस दिन पॉलिटी के 100 क्वेश्चन का टेस्ट हो, उस दिन 20 मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चंस भी हो, 120 क्वेश्चन हो। फिर जिस दिन ज्योग्राफी का टेस्ट हो, उस दिन 100 ज्योग्राफी के और 20 मॉडर्न इंडिया के, 20 पॉलिटी के, 140 क्वेश्चन हो। एंड लास्ट डे पे 200+ क्वेश्चन हो। तो इससे तुम्हारी भी कंटिन्यूटी बनी रहेगी, तुम्हें भी पता होगा भाई हर रोज ही टेस्ट होना, और किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन आना है तो तुम्हारी एक कांस्टेंट रिवीजन होती जाएगी, ठीक है। तो दैट्स द प्लान फॉर दिस बैच। आई होप दिस विल हेल्प। हाँ, रेजोल्यूशन कल कराऊंगा, ठीक है। नहीं नहीं पूजा, आज पहली क्लास थी और इसमें कोई टेस्ट नहीं है, कोई PYQs नहीं है, इसलिए टॉपिक जल्दी खत्म हो गया। अदरवाइज क्लास विल बी 11 to about 1:30। नहीं नहीं, मॉडर्न इंडिया चलेगा।
नहीं नहीं नहीं, मैं बताऊंगा शेड्यूल। थोड़ा सा मैंने इसको इंटेंशनली चेंज किया है कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पहले कराऊं। हाँ रमनप्रीत बोलो बेटा। यस आदित्य यू कैन अटेंड इट। ठीक है अशोक जी, अशोक रेड्डी, आई विल प्रोवाइड यू दैट। हेलो, हाँ जी रमन बोलो बेटा। गुड आफ्टरनून सर। ओके जी बोलो बेटा। सर मैंने तो पंजाबी ऑप्शनल का बैच ज्वाइन किया था, पंजाबी ऑप्शनल का। ओके सर मोहित सर ने अब तक एक भी टेस्ट नहीं दिया है और ना ही कोई शेड्यूल भेजा है। नवंबर 2022 में बैच स्टार्ट हुआ था और मार्च 23 में खत्म हुआ है। रमन आप वही स्टूडेंट हो जिनके फादर ने भी मेरे से बात की थी? नो सर। आर योर फादर इन पंजाब पुलिस? नो सर। ओके तो बेटा ये बात आप मेरे से करने की बजाय मोहित सर से क्यों नहीं कर रहे हो? सर मैंने सर को मैसेज भी किया कई बार, कोर्स भी की, सर कोर्स ठीक नहीं करते। मैं अभी सर के सर पास मैंने- जा रहा हूँ, मैं अभी सर के पास जा रहा हूँ, अभी आपको कॉल करवा रहा हूँ, ठीक है जतिन? दीज विल बी अवेलेबल। जतिन कैन आई गिव यू माइक? कैन यू रेज योर हैंड जतिन? जतिन आर यू फ्रॉम पंजाबी ऑप्शनल? यस सर। पंजाबी ऑप्शन से हो? कौन से साल से? 22 से ही? सर रिसेंटली जो अभी अभी खत्म हुआ है। उसमें टेस्ट हुए हैं? यस सर, ठीक है 2 टेस्ट हुए हैं सर। ठीक है, थैंक यू। मैं पूछता हूँ रमन का टेस्ट क्यों नहीं हुआ फिर सिर्फ स्पेसिफिकली। ऑलराइट देन गाइस, सी यू टुमारो। एंड कल PYQs होंगे और थैंक्स नवरूप कौर। एंड कल से PYQs एंड टेस्ट होंगे, सो कम प्रिपेयर्ड फॉर इट। मैंने तुम्हें अभी बता दिया है, आज टॉपिक 27 का हुआ है, कल राइज ऑफ नेशनलिज्म अप टू बर्थ ऑफ कांग्रेस होगा, राइट? इंडियन सिविल सर्विस एक्ट में क्या था, उसमें तो 1853 में ओपन कर दिया गया है, 61 में क्यों? 53 में नहीं, 1833 में ही बोल दिया था वैसे तो कि सिविल सर्विसेज में इंडियंस को अपॉर्चुनिटी देंगे। फिर 53 में बोला था कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम कराएंगे, पर हुआ ही नहीं था। तो 1861 ऑनवर्ड्स इन्होंने फिर उसको स्टार्ट करवाया लंदन में, ठीक है? हाँ जी बोलो सर। कि अगर अपने क्लास मतलब यही क्लास के अगर ऑनलाइन लगानी हो तो 3 दिन तो अभी जूम मीटिंग का दिखाया हुआ है, उसके बाद अगर रिकॉर्डिंग देखनी हो तो मिल जाएगी। मिल जाएगी। हाँ अक्षर सर से पूछ लेना। थैंक यू पूजा। ऋषभ यार मेरे से एक बार फोन करके बात कर लेना, ठीक है? चलो बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, गॉड ब्लेस यू।